Good morning, everyone. So, today's lecture, we will start with this chapter in front of your screen. It is Introduction to Company Accounts. Now, here, let us, in the introduction to company accounts, about what we have to learn, we have to understand about company. So, let us see ये company का meaning क्या है. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ definitions है जिसको we will have to understand. What is the definition? सबसे पहले section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013. Now companies को govern करने के लिए we have one act where all the rules and regulations are there. It is companies are governed by Companies Act 2013. All their rules and regulations are there in the Act 2013. So as per the Companies Act 2013, and which is the section 2 subsection 20, it states that a company means a company formed and registered under that act. Which is that act? Under Companies Act or under any previous Companies Act. So you will remember this. There was before Companies Act 2013, there was Companies Act 1956. So whether it is, so in this company में ऐसा नहीं कि जो अभी न्यू कंपनी जो फॉर्म हुआ होगा वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के फॉर्म हुआ होगा, बट वही सिर्फ कंपनी नहीं है. तो इससे प्रीवियस एक्ट के हिसाब से जो कंपनीज फॉर्म हुआ है दे ऑल्सो आर नोन एज कंपनीज. तो इससे प्रीवियस एक्ट कौन सा था कंपनीज का? Companies Act 1956. So companies which have been formed under the Companies Act 2013 as well as Companies Act 1956, all the businesses which are set up, which are imbibing, which are formed under these acts are known as a company. So now there is one more person who has given his definition to define a company. So Justice Marshall has defined a company as a corporation in an artificial being. तो हम कंपनी को क्या बोलते हैं? जैसे there is natural being, natural person, artificial person. So companies को हम क्या बोलते हैं? We call it a artificial being. We call it a artificial being. A corporation क्या है? Company क्या? Corporation means company. Corporation means what? Company. So company is an artificial being. So it is in the eyes of law, it is a person, but it is a artificial person. Means it can enter into contracts, it can sue the parties, it can lodge a case, ना, file a case. तो ये सब power companies के पास है. And it can file a sue, मतलब वो case lodge कर सकता है या उसके ऊपर भी case file किया जा सकता है. It can file a case or someone can file a case on a company. Correct? So it becomes a artificial being. Corporation क्या है? As per Justice Marshall, corporation is a artificial being, invisible. Means company है, हम मानते हैं, but can we see it? It is invisible, correct? But human being, we all are human being, we can see each other, but company, it is there, it has its existence, but at the same time it is also invisible, intangible. Intangible क्या होता है? Intangible assets पता है ना? We cannot touch, we cannot see, but we can only feel. So intangible a company is what? It is intangible and existing only in the contemplation of law. So it is a person only in front of the law. Correct? So that is the definition given by Justice Marshall. Then there is one more definition which I have put up here. It is by Lord Justice Hannay. He has defined a company as an artificial person created by law.
तो इसको कंपनी किसके हिसाब से, किसने, who has created this artificial person? It is the law. It is coming into existence because of law, because of the acts. एक्ट के हिसाब से फॉर्म होता है. तो इसको ये क्रिएट होने का, ये जो एग्जिस्ट हुआ, इसका पावर कहाँ से मिला है? इट हैज बीन गिवन फ्रॉम द लॉ, given by the law with a perpetual succession. Perpetual succession means what? That company जो है, हम कंपनी जब भी क्रिएट होता है तो we assume it is going to run for a n number of years. हम क्या मानते हैं? ये कंपनी जो है वो ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है. हम हमेशा मानती है, अज्यूम करते हैं that company has a perpetual succession but it will run for long number of years. हम ऐसे मान के नहीं चलते कल इसको बंद करना है, नहीं. whenever a company is formed, because company जो है, जो नॉर्मल जो अपना सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फर्म्स होता है, उनका क्या है, आज है कल नहीं है, गारंटी नहीं दे सकते. बिकॉज द लाइबिलिटी ऑल्सो अ फर्म इज अनलिमिटेड. मीन्स व्हाट? अगर बिजनेस का प्रॉपर्टी डेट्स फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो वो जो प्रोप्राइटर्स है उनका पर्सनल असेट्स भी यूज करेंगे. इट हैज फर्म्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी अनलाइक कंपनी, बिकॉज कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी. करेक्ट? तो ये क्या है? What does Lord Justice say? That an company is what? An artificial person created by law with a perpetual succession and a common seal. Now, what is the common seal? Company कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो दिस कॉमन सील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी. बिकॉज कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया या कुछ भी प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो वो अपना एक्सेप्टेंस कैसे देता है? बाय दैट कॉमन सील. करेक्ट? जो कॉमन सील है, जैसे हमारा सिग्नेचर, आप कोई भी जगह पे आप एक्सेप्ट करते हो ये चीज आपने किया है, तो आप कैसे कर सकते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो उस चीज का? बाय signing that document. So company कैसे वो documents को acceptance देता है? Through its common seal which acts as the signature of the company. Correct? So ये कंपनी के पास जब भी कंपनी स्टार्ट होगा तो एक तो रहेगा इट इज क्रिएटेड बाय लॉ और वो लंबे समय तक चलने वाला. इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन एंड वन मोर थिंग, इट हैज अ कॉमन सील. इट कंपनी के पास क्या होता है? कॉमन सील होता है. These are some of the examples of the company. Now let us see some of the features of the company. All this you all have done in your 11th standard, 12th standard. This is इसलिए I am not going on depth because ये सब आपको वैसे भी you all have. अगर ये थियोरी क्वेश्चन आता है तो आपको इसके ऊपर लिखना है. एंड वन मोर थिंग, इफ इट्स अ मल्टीपल, इफ देयर इज अ दो जगह में पूछ सकते. इफ इट्स अ ऑनलाइन एग्जाम या तो ऑब्जेक्टिव्स में या तो इट में कम इन द थियोरी क्वेश्चन. और अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो एवरीथिंग कम्स एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. So वहां पे भी you have to read the textbook. No other alternative, no other shortcuts. What you'll have to do, अभी भी आपको ये करना है. जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से 1-2 बार 3 बार 4 बार रीड करना है. I'm not asking you to mug up. I'm only asking you to read the chapter. जो आपको in any case करना है. So what is it? Incorporation. सबसे पहला पॉइंट कंपनी का क्या है? इनकॉर्पोरेशन. आपने ये चीज अभी एक चैप्टर फिनिश हुआ वहां पे ऑल्सो यू हैव heard this word again and again. Every question had this word incorporation. तो कंपनी का जो बर्थ है वो किससे होता है? इनकॉर्पोरेशन से. जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, रजिस्टर होता है, तो कंपनी सबसे पहले कंपनी का लाइफ बर्थ स्टार्ट कैसे होता है? with the incorporation, that is the registration of the company. Then I already told you that company is a artificial person. company क्या है? company जो है वो artificial person है.
So artificial person, like because it has to enter contract, हम कंपनी को क्या मानते हैं, नॉट अ नेचुरल पर्सन बट अ आर्टिफिशियल पर्सन. मतलब इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी. कंपनी एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ द लॉ, देयरफॉर इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. देखो जब हम अकाउंट्स में रूल्स करते हैं तो पहला एक अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट में हम सब पर्सन्स को गिनते हैं एंड पर्सन में हम कंपनी को भी कंसीडर करते हैं. बोलते हैं टू टाइप ऑफ पर्सन कैन बी इंक्लूडेड, वन इज नेचुरल एंड अदर इज आर्टिफिशियल. सो आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनीज आते हैं. फिर उसको पर्सनल अकाउंट समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं. वी आस्क वन क्वेश्चन टू आवरसेल्फ, कैन वी फाइल अ सूट ऑन दिस थिंग, या ये जो आइटम है इसके ऊपर कैन वी फाइल अ सूट. तो अगर हमें आंसर यस मिलता है देन वी से इट इज अ पर्सनल अकाउंट. सो इफ कैन वी फाइल अ सूट अगेंस्ट अ कंपनी, यस, सो कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट. In the, when we do this is when we do accounts. हम कंपनी को कौन से अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं, पर्सनल अकाउंट में. रियल नॉमिनल में नहीं. कहाँ पे क्लासिफाई करते, पर्सनल अकाउंट में, बिकॉज इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ इट एग्जिस्ट. फिर सेपरेट लीगल एंटिटी. तो इसका मीनिंग क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इन द आइज ऑफ लॉ शेयर होल्डर एंड कंपनी हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न या पार्टनरशिप कंसर्न को लेते हो तो वहां पे बिजनेस और पार्टनर्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों सेम है. जैसे मैंने बोला अगर बिजनेस डेट्स फुलफिल, बिजनेस डेट्स पे करने को नहीं हो रहा है बिजनेस के पैसे से, तो पार्टनर अपना पर्स या सोल ट्रेडर है वो अपना पर्सनल एसेट्स भी उसको लेके आना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मींस इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स. अलग है कंपनी जो है उसके शेयर होल्डर्स से, क्या है, अलग है. परपेचुअल सक्सेशन ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको. हम हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कंपनी स्टार्ट करते हैं, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन. द कंपनी विल बी रनिंग फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ इयर्स. ये नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं आते, ये तो कंपनी कल बंद हो जाएगा, नहीं. कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं, जब भी कंपनी है लाइफ में, हम हमेशा यही सोचते हैं दैट दिस कंपनी विल रन फॉर long number of years and it closes down, that is different thing. लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं that the company will run for long number of years. And then lastly, the common seal of the company acts as the signature. It's the stamp of the company. It is the it represents the signature of the company. अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट में ये स्टैंप डाल दिया, मीन्स यू आर गिविंग द एक्सेप्टेंस टू दैट डॉक्यूमेंट. Like you as a human being, as a person, natural person, आप लोग अगर किसी भी एग्रीमेंट में साइन करते हो मीन्स आप अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हो. वैसे ही कोई भी एग्रीमेंट में अगर कंपनी अपना स्टैंप, अपना कॉमन सील डाल देता है उधर, तो कंपनी इज ऑल्सो गिविंग द एक्सेप्टेंस फॉर दैट एग्रीमेंट. करेक्ट? सो दीज आर द फीचर्स. These are the features of the company. Now let us go to the next one. Let us see some of the types of the company. कंपनी के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है, लेट अस डिस्कस नाउ. सो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है सेक्शन 3. तो टाइप्स ऑफ कंपनीज किधर है, इट इज इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे सीखते हैं वो सब कुछ कंपनीज एक्ट में है. एंड विच इज द नेम ऑफ दैट एक्ट, इट इज एक्ट इन विच इज फॉर्म्ड इन द ईयर 2013, इसलिए हम इसे बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013. सो सबसे पहले वी हैव व्हाट, सबसे पहले वी हैव प्राइवेट कंपनी. नाउ व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी which cannot sell its issue its shares in the to the public. So it is started by a limited number of shareholders.
limited company, private company or private limited company is a company which is started by limited number of shareholders. और ये लोग पब्लिक में अपना शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर्स को लिस्ट नहीं कर सकते. What do you mean by listing of the shares in the stock exchange? मतलब displaying your shares in the stock exchange so that public can subscribe, purchase the shares from the stock exchange. ये पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास नहीं है. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स रह सकते हैं? डू यू नो दैट? यस यस करेक्ट. कितना हो सकते हैं? मिनिमम 2 and maximum 200. Very good. Minimum 2 and maximum 200 is the number of shareholders which can participate, which can become the member of the private company. So then we have the opposite, that is the public company. Public companies are companies which can sell their shares in the market to the public. Their shares are listed in the stock exchange. इनका minimum number of कितने shareholder होने चाहिए? 7 and maximum there is no limit. Maximum का कोई limit नहीं है. Then what we have? 1% company. This is a company which is started by, which can be started by one person. Name itself says it's a company which is represented by 1%, correct? 1% company. And उसके बाद हमारे पास है company limited by shares. तो ये जो company है, it is the company which is started by shares. It is the company which is started by shares. तो यहाँ पे as per section 2 सारे जो भी हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि it is the definition is coming by section 2 subsection 22 of the Companies Act 2013. Company limited by shares means a company having the liability of its member limited by the memorandum to the amount of the shares. बोलते कि जितना भी उनका shares का payment है उतना ही उनका liability है. Means what is the unpaid amount of shares, that will be the liability. उतना पैसा उनको लेके आना है. जितना भी उनका shares का unpaid amount होगा, that is their liability. So it is company limited by shares. So उनका liability किससे restricted है? By the amount of shares issued to them. फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. तो ये जो कंपनी है ये किसके ऊपर स्टार्ट होता है? गारंटी के ऊपर. तो इसमें जो ओनर्स है या मेंबर्स है उनको गारंटर भी बोल सकते हैं. तो इट इज व्हाट दिस इज द एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी means a company having the liability of its member limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. The members of the guarantee company are in effect placed in the position of guarantors of the company's debt by the agreed amount. तो इनका भी अमाउंट किससे लिमिटेड है? टू द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे जो भी स्टार्ट करता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उन सबको हम क्या बोलते हैं? गारंटर्स. और उन लोग को जितना वो लोग, उनको जब भी कंपनी बंद होने वाला है तो जितना उनका लाइबिलिटी है उतना ही देना है. बट अलग बात क्या है, इसमें जो मेंबर्स है उनको हम क्या बोलते हैं? गारंटर्स बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव अनलिमिटेड कंपनी. सो व्हाट इज, नेम से ही पता चलता है व्हाट इज अनलिमिटेड कंपनी. इनका जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. इनका नॉर्मली लाइक अनलिमिटेड लाइक सोल ट्रेडर्स, पार्टनर्स, पार्टनरशिप बिजनेस. Similar to this unlimited liability, जो unlimited company है, their liability is also unlimited. तो इनका there is no distinction between business assets and private assets. Then there are some other types. Holding company.
Now, what is a holding company? Holding, the name itself says a company which owns more than 50% shares of an other company is known as a holding company. So which is a, what is a holding company? Holding company वो company को बोलते हैं जो opposite company के maximum, एक देखो 50-50 मतलब equal होता है, equal से ज्यादा majority shares. Holding company is a company who acquires majority shares of an other company, of a subsidiary company, is known as a holding company. जिसका more than 50% shares खरीदा जाता है ना, उसको हम बोलते हैं subsidiary company, और जो खरीदता है more than 50% उसको बोलते हैं holding company. तो holding company क्या करता है? More than 50% shares acquire करता है of a other company which can also be called as subsidiary company. इसका नेक्स्ट वाला तो यही है, सब्सिडरी कंपनी. सो सब्सिडरी कंपनी क्या है? जिसका मोर देन 50% शेयर्स खरीदा गया है बाय एन अदर कंपनी विच इज अ होल्डिंग कंपनी. सो दैट इज अ सब्सिडरी कंपनी. तो उसके बाद वी हैव एसोसिएट कंपनी. सो एसोसिएट कंपनी क्या होता है? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी means a company in which that other company has a significant influence. क्या बोलते हैं? एसोसिएट कंपनी किसको बोलते हैं? जिसमें दूसरे कंपनी का क्या होता है? ऐसा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अनलाइक सब्सिडरी कंपनी ऐसा नहीं है. कितना? एटलीस्ट 20% शेयर्स, एटलीस्ट 20% शेयर्स भी एक्वायर किया है, तो देन उस कंपनी के ऊपर उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो दैट बिकम्स अ एसोसिएट कंपनी. समझा? कितना परसेंट? एटलीस्ट 20% शेयर्स भी एक्वायर कर लिया, तो इट बिकम्स अ एसोसिएट कंपनी. सो नेक्स्ट वी हैव स्मॉल कंपनी. तो नेम इटसेल्फ स्मॉल कंपनी मीन्स, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि स्मॉल कंपनी मीन्स a company other than a public company. Small company means a company other than a public company, जिसका बोलते हैं जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितना, किससे? does not exist 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 5 crore rupees. बोलते कि इनका पेड अप कैपिटल किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए? 50 लाख, या मैक्सिमम जो लॉ से प्रिस्क्राइब हुआ है दैट इज 5 करोड़ रुपीस. किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए? 50 lakh, and as per law as may be prescribed which shall not be more than, मतलब ठीक है एक 50 लाख तो है एक, लेकिन मैक्सिमम जो पैरामीटर है वो कितना है? 5 करोड़ का. सेम वे टर्नओवर के ऊपर भी लिमिट है. मतलब आप स्मॉल कंपनी किसको बोलोगे? एक तो उनका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको भी अगर उससे भी अगर ज्यादा है तो मैक्सिमम इट इज 5 करोड़, एंड इसके बाद प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इट इज 5 करोड़, एंड वन मोर सीलिंग हैज बीन केप्ट ऑन बेसिस ऑफ द टर्नओवर. व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर? Turnover means what? Turnover means sales. Turnover means not profit. Turnover means sales. तो sales किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? Turnover as per its last profit and loss account does not exceed 2 crore rupees. कितना exceed नहीं होना चाहिए? Exceed नहीं होना चाहिए. It should not exceed 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 20 crore rupees. किससे ऊपर नहीं होना चाहिए? तो 2 crores टर्नओवर जो है वो 2 crores के ऊपर नहीं होना चाहिए, बट एज पर लॉ इट कैनॉट बी मोर देन 20 crores. सो नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट कंपनी. सो गवर्नमेंट कंपनी मतलब उसका जो कंट्रोल है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा. वो कंपनीज जो कि कंट्रोल्ड बाय द कंपनीज दोस आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन बी नोन एज गवर्नमेंट कंपनी. करेक्ट?
गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% कंट्रोलिंग पावर कब मिलता है? जब आपके पास मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं। तो 50-50 मतलब देन इट इज इक्वल, देयर कैन नॉट बी एनी कंट्रोल। 50 मेरे पास है, 50 आपके पास है शेयर होल्डिंग, तो देन यू बोथ आर इक्वल। कोई दूसरा कंट्रोल, एक दूसरे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू देन बिकम इक्वल पार्टनर्स, इक्वल ओनर्स, यू बिकम equal owners. But when you have a majority control, majority shareholding, then you get the controlling power like the holding company. Holding company को क्यों controlling power मिल जाता है? क्योंकि उसके पास majority shares होता है, more than 50%, 51, not less than 51% shares. किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो हम बोलेंगे इसको, देन वी विल टेल इट एज, कॉल इट एज अ गवर्नमेंट कंपनी। फिर हम उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट वी हैव फॉरेन कंपनी। ये भी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी विल कम टू नो व्हाट इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स द कंपनी विच आर एस्टैब्लिश्ड इन अदर कंट्री लाइक अवर मल्टीनेशनल कंपनीज। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी और फॉरेन कंपनी हो जरूरी नहीं, अगर वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है हमारे ही कंट्री में, फिर उसको हम फॉरेन कंपनी नहीं बोल सकते है ना। तो फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे? एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो उसको हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी। So as a place of business in India, मतलब वो फॉरेन कंपनी है, वो रजिस्टर्ड बाहर के कंट्री में हुआ है, नॉट इन इंडिया, बट उसका क्या है? उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है, बट उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं हुआ। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया, बट इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इज नोन एज अ फॉरेन कंपनी। देन we have a dormant company. dormant company मतलब क्या? inactive company का कुछ साल से, मतलब it is a inactive company. dormant को